Hello and welcome back to my channel. So today we are going to discuss the chapter number first of our physics. It's for class 9th. So physics, class 9, the first chapter is motion. So we are going to study today motion. So in this chapter we have to learn many keywords like what is rest, what is reference point, what is motion, what is secular, vector quantity, scalar quantity, distance, displacement, velocity, time. There are so many things. So but firstly we will start with three things. That is rest, that is a reference point, and there is motion. What are these three things? What are these three things? Firstly, this. Not changing position with respect to the time. Like this is the pen. It's not changing its position with respect to the time. Like see, if we'll change, it's in motion. If it's like stationary, it's not moving itself, it's not changing its position. Like if it's here, it will here, it is in motion state. Here, it is motion state. The rest is that kind of a state where the object is not moving or not changing its position with respect to the time. Okay, and everything is in motion with respect to the time. Like see, if this pen is not moving but my hands are moving, like you are eating or doing something like studying, so except this, everything around is in motion. So with respect to the surroundings, this is in rest. Okay, and now what is a reference point? The point of view to see a body. For example, if we are sitting in a bus, we are here, we are seeing that, we think like we are in a rest, we ourselves are in rest, but like see, here are trees, here are scooties, like something like that. Okay, I think I'm in rest, and these all things are in motion because a bus is moving. So moving, I see these like moving, but for the peoples outside the bus think they are in rest, and I am in the state of motion. So why this happens? This is all because of the reference point. Okay, if aliens, yes, like aliens है, aliens हमें मून से कहीं से देख रहे हैं धरती पे, उनके लिए हम रेस्ट में, उनके लिए हम मोशन में होंगे. क्यों? हम हमेशा 24/7 मोशन में थे. क्यों? क्योंकि अर्थ मूव कर रही होती है, थोड़ा अर्थ मूव करती है. लेकिन फॉर अस वी आर इन रेस्ट, isn't it? So this is the reference point. And now what is motion? The like for what our top subject is based, motion. Okay, motion, change in position of an object with respect to its surroundings and time. तो मोशन अपनी जो एक ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को चेंज करे, चेंज इन पोजीशन, वो अपनी पोजीशन में चेंज लाए with respect to the surroundings and with respect to the time. For example, मैं चल रही हूँ, ठीक है, ये एक सड़क है and I'm walking, ठीक है, I'm walking. मैं मोशन में हूँ, किसके मुकाबले? जो यहाँ पे ट्रीज है. सो ये रेफरेंस पॉइंट बन गया. अराजीन तुम क्या कर रही हो? मैं चल रही हूँ. इसको कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला मैं चल रही हूँ? क्योंकि जब मैं यहाँ पे थी तो यहाँ पे मेरा ये वाला पेड़ और इसका आधा वाला पेड़ था. जब मैं यहाँ पहुँची मेरा ये पेड़ था, तो आई जस्ट चेंज माई पोजिशन फ्रॉम हेयर टू हेयर.
So that's why I can say that I'm in emotion. I'm in state of motion. So with respect to the surroundings, I can say that I am in emotion. With respect to the surroundings now, I can say I'm talking, I'm writing, so I'm in a motion state. Before moving further, we have to study two scales. That is, one is the vector quantity or scale, vector quantity. Another is the scalar quantity. Okay. So what are these quantities? Are these the quantities by which we measure rice or milk? No, these are not that quantities. This quantity depends on the magnitude plus the directions. Let me write first and then I will let you understand and signs. This depends only on magnitude. Okay, let me tell you what are these. So firstly, let me tell you what is vector quantity. So vector quantity is a quantity, like if you are given in a question, the bus started at 10 meter per second and it accelerated towards east by 20 meter per second square. So here is the magnitude, like this, the numericals 20 and 10, like here given the numbers. So east is a direction. So in every question you will not have these directions written, but if you know like what is distance is whether a scalar or a vector, so you will be you can identify whether the question is vector or scalar. And a scalar is simply where this is not given, like this bus started at 10 meter per second and it accelerates towards ये नहीं होगा, ईस्ट नहीं होगा स्केलर में, towards भी नहीं होगा, and it accelerated at 20 meter per second square. Okay, is this clear? So now let's move to the next topic, that is we have to study some key points, that is distance, displacement, velocity and speed. Now we have to study these things. What are they? So let me tell you firstly that what is distance. I will tell the definition, you can write it. Total area covered by an object with respect to the time is known as distance, and distance is a scalar quantity denoted by small letter d. तो ठीक है, डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस एक टोटल पाथ कवर है. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खड़ी हूँ एंड मेरा स्कूल यहाँ पे है, ठीक है. व्हाट आई हैव मेरा स्कूल यहाँ पे है, ठीक है. मेरा स्कूल यहाँ पे है, तो फॉर एग्जाम्पल ये स्कूल का रास्ता है, ठीक है. तो मैं यहाँ से आऊँगी, जब बच्चों की तरह यहाँ से स्कूल पहुँच जाऊँगी. लाइक मैं डायरेक्शंस फॉलो करूँगी, लाइक दिस, तो डायरेक्शन फॉलो करते करते मैं स्कूल आऊँगी. तो ये टोटल पाथ जो मैंने पाथ कवर किया ना, दैट इज डिस्टेंस, ठीक है. जो टोटल पाथ मैंने कवर किया विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा होगा ना, 5 सेकेंड नहीं लगते, वैसे 15 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगे, ठीक है. अब
इसी के रेफरेंस में मैं बताती हूँ डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। ये यहाँ से यहाँ तक इस पाथ में ये जो डिस्क्राइब था, अगर मैं ऐसे आऊँ लेकिन विदाउट एनी पाथ, मैं ऐसे आऊँ तो मेरा ये हिस्सा बच जाता है, ये हिस्सा बच जाता है, ये हिस्सा बच जाता है। सो इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। डिस्टेंस की फॉर्मूला लिख लीजिए आप, डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट की है वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, इतना समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। Let's move to the next. Now let us see what is velocity. Before that, let me tell you that displacement is a vector quantity. So now velocity. Velocity, let's study first the speed because it's in reference to the speed. Okay, speed is a scalar quantity. Scalar quantity. Isn't it? So स्केलर सुनते ही आपके मन में आ गया ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शंस। ठीक है, ये आना चाहिए दिमाग में उसी समय जिस समय आप स्केलर या वेक्टर का नाम सुने। सो ये आ गया कि स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं हूँ एंड ये मेरा स्कूल है या ये मॉल है। ठीक है, मैं और मेरी फ्रेंड अलीना, यहाँ तक हमें जाना है। ठीक है, यहाँ तक हमें जाना है, हमें साथ में चलना है। ठीक है, तो हम जाएंगे 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 जाएंगे, पहुँचेंगे हम मॉल की गेट तक। ठीक है, ठीक है, अब मुझे बोल रहा है अब हमें अपनी स्पीड निकाली, हमें कितना स्पीड में यहाँ तक पहुँचे। ठीक है, तो हम पता क्या करेंगे, जितनी भी हमने डिस्टेंस ट्रैवल की ना और जितना भी टाइम लगा, हमें 1 घंटा लगा, 1 आवर, और हमने 100 मीटर्स ट्रैवल किया, तो हम 100 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे। वैसे 100 डिवाइडेड बाय 1 नहीं करेंगे, इसमें चेंज करना पड़ता है फिर, बट फिर भी ठीक है। हम टोटल डिस्टेंस हमने क्या निकाली वो ऊपर रखेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, अब इसी के रेफरेंस में हम देखते हैं कि व्हाट इज वेलोसिटी। इसी के रेफरेंस में देखते हैं व्हाट इज वेलोसिटी। सो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी, ये इजी है याद रखना कि वेक्टर है, किसी नहीं, वी से वी वेक्टर, वी से वेलोसिटी, वी से वेक्टर। सो वेलोसिटी इज नथिंग बट इज स्पीड विद, वेक्टर है तो क्या, डायरेक्शंस। तो ये वेक्टर है, इसमें जो स्पीड थी उसमें थी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, इसमें है टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। इतना क्लियर है, बहुत ही क्लियर है। और जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती है उनके ऊपर एक ऐसा एरो होता है, तो इसको हम डिनोट करते हैं बाय दिस, एंड डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं बाय स्मॉल एस एंड दिस। डिस्टेंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं एंड स्पीड को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, सो इन टेक्स्ट 9th की एनसीईआरटी बुक में बहुत से क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो हम वो भी सॉल्व करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दैट एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस, सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। सो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसने मूव किया है एक डिस्टेंस के थ्रू, क्या इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? अगर हाँ तो अपने आंसर को मतलब एक एग्जाम्पल के साथ सपोर्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई इंसान है, अब मैं नहीं हूँ, मैं थक गई ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है, और यहाँ पे कोई शॉप है, इसको यहाँ से यहाँ तक आना है, तो इसने ये डिस्टेंस ट्रैवल की यहाँ तक। ठीक है, पर फिर ये वापस भी घर आया, तो ये थी इसकी इनिशियल पोजीशन,
ये थी इसकी फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस इसने ट्रैवल की फॉर एग्जांपल 10 मीटर थी यहाँ तक, तो इसने 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की, 20 मीटर इसने डिस्टेंस ट्रैवल की। बट क्या हम बोल सकते हैं कि इसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो थी? हाँ, बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम थी। फॉर एग्जांपल आप दुकान से कुछ चिप्स विप्स लेने गए, फिर आप वापस घर आ गए, इसमें आपने डिस्टेंस तो ट्रैवल की, लेकिन आपकी डिस्प्लेसमेंट कहीं ना कहीं ज़ीरो रही, क्योंकि आपकी इनिशियल पोजीशन जहाँ पे आप पहले थे और फिर जब आप काम करने के बाद वापस आए तो वो भी सेम थी, तो इसी की वजह से डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो थी। लेकिन डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं होती। ज़ीरो होगी जब आप रेस्ट पे होगे, बट जब आपने कोई काम किया तो बिल्कुल आपकी डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होगी। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे जल्द नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू पोस्ट द नेक्स्ट वीडियो टुडे ओनली, अगर नहीं तो फिर कल।